दिल्ली के शिक्षक आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे, ऐसा कोई भी ऑर्डर, ऐसा कोई भी आदेश दिल्ली सरकार ने जारी नहीं किया है। मैं उन्हें खुले रूप से चुनौती देता हूं, अगर ऐसा उनके पास कोई ऑर्डर है तो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर डाले। ये नोटिफिकेशन 20 नवंबर को जारी हुआ है। ये सर्कुलर है दिल्ली के गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन केयर टेकिंग ब्रांच का। कल आशीष सूद जी चुनौती दे रहे थे कि कोई आदेश दिखा दिया जाए, ये खबर ऐसे ही चलाया जा रहा है। So, we are addressing the media to place the facts on record, to clear the confusion created by false and misleading information related to government school teachers. A narrative has been circulated on social media and amplified, claiming that government school teachers in Delhi were directed to count stray dogs. It is categorically stated that this claim is completely false, fabricated and baseless. No such order, instruction, circular or policy decision has ever been issued by the Directorate of Education requiring teachers to count dogs. The Directorate of Education also issued an official press release on the 30th of December 2025. The press release also categorically stated and denied the false claims. Despite this denial, this misinformation was deliberately repeated and amplified. Teachers are engaged only for academic responsibilities. The false narrative is completely mischievous and directly harms the teacher's morale and dignity. This has created confusion and panic among teachers and school staff, misled the parents and the public at large. And this has also attempted to damage the credibility of the education department. In fact, some persons on social media have been seen to be impersonating as teachers and counting dogs, which is completely mischievous. This issue has been formally taken cognizance of. Digital evidence, posts and timelines have been documented and preserved. A formal complaint has also been filed with the Delhi police. The complaint addresses the deliberate misinformation, the impersonation of some persons as teachers, criminal defamation, coordinated amplification, incitement and misuse of social media. The department is fully cooperating with the investigation, and the education department will not remain silent against any deliberate misinformation. Teachers' dignity and student safety are non-negotiable. Legal action will be pursued in accordance with the law, and facts and responsibility will prevail over false narratives. डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने किसी भी तरह का कोई आदेश स्ट्रे डॉग के रिगार्डिंग नहीं निकाला और यहाँ तक कहा कि इस बारे में जो कोई झूठ इंफॉर्मेशन फैलाएगा उस पर कार्रवाई हुई, कंप्लेन की बात की गई। इसी तरह से आज मैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी का मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा और उन्होंने कहा कि हमने पुलिस पे कंप्लेन करी और एफआईआर होगी। अब मुझे ये लगता है कि हमने पहले भी कहा था और पहले भी हमने सर्कुलर की कॉपी पहले भी दी थी। मैं उम्मीद कर रहा था कि शिक्षा मंत्री या अगर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पीसी कर रही हैं तो वो बताएंगे कि आखिर वो सर्कुलर किसने इशू किया। दो सर्कुलर हमारे पास है। एक सर्कुलर है 20 नवंबर का, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन केयर टेकिंग ब्रांच का, जिसमें उन्होंने कहा कि स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट के लिए हर स्कूल में नोडल पॉइंट अपॉइंट किया जाएगा। और दूसरा एक सर्कुलर है 5/12 का, यानी 5 दिसंबर का, रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ डिटेल ऑफ नोडल ऑफिसर ऑफ ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस
schools and stadium regarding matter related to stray dog. मैं आपको इसका चिट्ठी नंबर भी पढ़ देता हूं. यह है 1/1478 DD PA CTV 707 2526 1776 गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन केयर टेकिंग ब्रांच का है. ये 5 दिसंबर का सर्कुलर है. इस सर्कुलर में फिर से ये हवाला दिया गया और रिमाइंडर मोस्ट अर्जेंट लिखा गया, जिसमें स्ट्रे डॉग के रिगार्डिंग ये कहा गया कि आप जल्दी से सभी स्कूल्स और स्टेडियम जानकारी दें. अब मैं तीसरा आपको दिखाता हूं. ये है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट. यानी एक डिस्ट्रिक्ट ने अपॉइंट किया जिसमें अलग अलग स्कूल्स में ये सारे लिस्ट हैं, टीचर्स के नाम हैं, और उसमें मुखर्जी नगर का स्कूल है जिसमें एक टीजीटी टीचर को अपॉइंट किया गया है. न्यू पुलिस लाइन में एक टीजीटी सोशल साइंस के टीचर्स को, इसी तरह से टीचर्स का नाम है, कोई टीजीटी है, कोई पीजीटी है, ये अपॉइंट किया गया. अब मेरा सवाल शिक्षा मंत्री से है कि अगर ये आदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट का नहीं था तो फिर ये जो सर्कुलर इशू हुआ 5 दिसंबर को, तो फिर क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी? क्या ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन या शिक्षा मंत्री के बिना डायरेक्शन के, बिना जानकारी के इशू हुआ है? और अगर इशू हो गया तो कार्रवाई क्या होगी? एक बात. दूसरी बात, चूंकि ये सर्कुलर एग्जिस्ट कर रहा है, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री या डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने ये नहीं कहा कि ये जो सर्कुलर है, इस सर्कुलर को हमने वापस लिया है. तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने किसी टीचर को स्ट्रे डॉग की निगरानी में हमने अपॉइंट नहीं किया नोडल पॉइंट, तो फिर इस सर्कुलर को आप वापस लीजिए. अगर आप वापस नहीं लेंगे तो केवल कहने से काम तो नहीं चलेगा. ये एफआईआर का खेल खेलकर डराने की कोशिश तो ना करो. जनतंत्र में बाबा साहब के संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि अगर आप किसी भी तरह से गलत आदेश या कोई ऐसा डायरेक्शन जो शिक्षा को और स्कूल्स को या टीचर्स को इंपैक्ट या अफेक्ट करेगा, हम तो उठाएंगे. आपके एफआईआर से हम नहीं डरने वाले. लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि पहली बात कि इन दोनों सवाल के जवाब देंगे.